Hello students, how are you? Now we are on our chapter number 2. In last video we have learned our chapter number 1, in which I told you the difference between micro and macroeconomics. What you have learned in plus 1 class and now what you are learning in plus 2 class. In that chapter we have done only the definition of macroeconomics, and now in chapter 2 here are the basic concepts of macroeconomics, because every subject is having their own wordings, their own terminologies. ठीक है, क्योंकि जब तक हम उन बेसिक कंसेप्ट्स को समझते नहीं हमें वो बुक समझ में आनी मुश्किल है, इसलिए उन बेसिक कंसेप्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है. अवर फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट इज गुड्स. गुड्स कोई भी चीज़ हो सकती है, बट हेयर वी आर टेकिंग द गुड्स इन टू फॉर्म्स दैट आर फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर कंज्यूम्ड आर यूज्ड बाय हाउस होल्ड सेक्टर. मतलब कि हम लोग जो रोटी खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, those goods are known as the final goods, which are finally used by household sector, and which goods are out of the production boundary line. What is this production boundary line? The goods which are in this production boundary line are known as the intermediate goods. अभी बताती हूँ आपको. And the goods which are out of this production boundary line are known as the final goods, ready to consume. And intermediate goods are those goods which again and again go for the further production process, which are reused for the next production process, in which value is still to be added. Now in this production boundary line, cotton is intermediate good, because from this cotton the producer will make thread. अब मैं आपको बताती हूँ वैल्यू एडिशन की बात. वैल्यू एडिशन क्या होती है बेटा? वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू फाइनल गुड्स माइनस इंटरमीडिएट गुड्स. द प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स माइनस द प्राइस ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स. सपोज करो बेटा मैंने फार्मर से 500 रुपीज़ की कॉटन परचेज किया है, और इस कॉटन से मैंने क्या किया, थ्रेड बनाया, दैट इज ऑफ 1500 रुपीज़. अब देखो, इट मीन्स दिस 500 रुपीज़ इज माई इंटरमीडिएट कॉस्ट. इट इज़ अ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि मुझे 1500 रुपीज़ की चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए 500 रुपीज़ का रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ा है. तो अगर मैं कहूँ कि मैंने कितनी वैल्यू एडिशन की है, तो आई हैव वैल्यू एडेड 1500 माइनस 500, दैट इज इक्वल टू 1000 रुपीज़. इट मीन्स 1000 रुपीज़ इज माई इनकम, इज माई वैल्यू एडिशन. Again, final goods are those goods which are finally consumed by household sector, and intermediate goods are those goods which still has to go in further production process, and value is still to be added in these goods. Now, final goods may be consumer goods and may be producer goods. Consumer goods which are used by household sector, it is of 4 types. One is single use goods, जिसे हम बस सिर्फ एक ही बार यूज़ करते हैं, एक ही बार यूज़ करने से वो चीज़ ख़त्म हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इन फैंस, LPG कंज्यूम्ड फॉर कुकिंग फूड. सेकेंड इज सेमी ड्यूरेबल गुड्स विच इज़ नॉट हैविंग एनी टाइम लिमिट. फॉर एग्जाम्पल, क्रॉकरी अभी है, हाथ से छूट गई, ख़त्म. So intermediate goods, semi-durable goods are not having their time limit. ठीक है. And the third are durable goods, which are to be used again and again. अब इलेक्ट्रिसिटी फैन में यूज़ होगी तो वो तो ख़त्म, बट फैन रोज़ हम यूज़ करते हैं, which is durable. The things which are
used again and again are known as the durable goods. And the fourth thing is services. Services which are professional services like teacher services, doctor services, lawyer services, which we are using in our daily routine lives. Okay? So these are known as the consumer goods. And if we are talking about the producer goods are those goods which are used for the production process by the producers. It may be capital good, it may be raw material. Capital goods, durable goods, which are costlier, which are used again and again for the production of other goods like machineries, equipments, building. These are our capital goods. ये costly तो हैं ही हैं और इसको हम बार बार यूज़ भी करते हैं और are used for the long time. Raw material, semi finished goods, these are the single time use goods. ठीक है. सो पर है तो प्रोड्यूसर गुड्स, क्योंकि प्रोडक्शन में ये काम होता है, रॉ मटेरियल के बिना कोई भी चीज़ प्रोड्यूस हो ही नहीं सकती. ठीक है. तभी बेटा ये लिखा गया है ऑल द कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट all the producer goods are not capital goods. Why it is said? Because capital goods includes only durable goods are used for the production process. But producer goods में तो बेटा ड्यूरेबल एंड सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल तीनों तरह की चीज़ें आ जाती हैं, तो उन सबको कैपिटल गुड्स तो नहीं बोल सकते. बिकॉज कैपिटल गुड्स की ये एक लिमिटेशन है कि दीज आर ओनली ड्यूरेबल गुड्स एज वेल एज यूज फॉर द लॉन्ग टाइम. सो इसलिए all the capital goods are producer goods, but all the producer goods are not capital goods. फिर से मैं बोलूँगी फाइनल, which good is final good, which good is intermediate goods. ये कोई इसकी बेटा कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं है कि यही फाइनल गुड है, यही इंटरमीडिएट गुड है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द एंड यूज ऑफ दैट कमोडिटी. मीन्स उसे यूज कौन कर रहा है. इफ द गुड is used by the household sector is final consumption goods. If the same good is used by a production sector will become intermediate good. छोटी सी एग्जांपल लेते हैं बेटा. Milk used by the household sector for making tea, for drinking milk, that is the final good. But the same milk, if that used by production sector, suppose करो किसी हलवाई ने बेटा परचेज कर लिया, उसने उससे पनीर बनाना है, उसने उससे दही बना के बेचनी है, ठीक है, या उसने बर्फ़ी बनाई है, दैट विल बिकम इंटरमीडिएट गुड फॉर दैट पर्सन. सो इट डिपेंड्स अपॉन द एंड यूज वेदर द सेम गुड इज इंटरमीडिएट गुड और कंजम्पशन गुड, फाइनल गुड. सेम हेयर अगेन, फाइनल गुड्स विच आर यूज्ड बाय हाउसहोल्ड सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर, नॉट नेसेसरली कि these goods are production goods or consumption goods, because it also depends upon the end use. If the same good is used by the household sector, suppose करो बेटे फाइनल गुड्स में भी कैपिटल गुड्स की बात कर लो. कैपिटल गुड्स में मतलब कि आप लोगों के घर में वॉशिंग मशीन है, आप लोगों के घर में फ्रिज है, these are the final goods. Or fridge, that is the durable good, so that is capital good. But as that is used by household sector, so it is consumer good. But if the same fridge is kept in the medicos, or that is kept in the hospital, or that is kept in the hotel, that is capital good. चीज़ एक ही है, but depends upon the end use. So that is why goods हैं, but इनकी final definition it's depends upon its end use, कि हम उस चीज़ को use कहाँ पे कर रहे हैं, whether that is for the homely consumptions or that is for the production sector consumptions. So this is the one topic which is related to goods. Yes friends, our next topic is expenditure. In any economy, we are doing expenditure on consumption as well as investment both, because aggregate demand is equal to consumption plus investment. यहाँ पे बेटा मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि we are having two types of the economies. One is closed economy and other is open economy. What is closed economy?
closed economy is that economy which is not related to any other country for the purpose of export and import. That means to say that economy is fully self-dependent economy. They doesn't need that economy doesn't need any type of the foreign help. But if we are talking about open economy is that economy which is dependent on other countries for the purpose of export and import. बेटा आजकल के ज़माने में तो कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जो सेल्फ डिपेंडेंट हो सकता है, क्योंकि जितनी वास्ट नीड्स हो चुकी हैं, जितना लोगों के फैशन टेस्ट कस्टम्स चेंज होते जा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू import and export the things to other countries and from other countries. So that's why our economy is divided in 4 parts. जो मैंने पिछले टॉपिक में आपको बताया था, कंजम्पशन that is household sector, investment that is production sector, plus G गवर्नमेंट सेक्टर. पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे वो कहते थे कि देयर इज़ नो नीड ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एनी इकोनॉमी, बट गवर्नमेंट की इंटरवेंशन के बिना कोई भी काम प्रॉपर तरीके से नहीं चल सकता, चाहे वो डिफेंस सर्विसेज के लिए हो या किसी तरीके से भी. गवर्नमेंट की इंटरवेंशन किसी भी इकोनॉमी में अब ज़रूरी मानी जा रही है. सो जी इज़ द गवर्नमेंट सेक्टर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट. It is related to rest of the world, which is net export. Net export means से जो हम दूसरे कंट्रीज़ के साथ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं उसको हम इस सेक्टर में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर में लेते हैं. बट इन दिस चैप्टर वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस ओनली, दैट इज कंजम्पशन सेक्टर मीन्स से हाउस होल्ड सेक्टर प्लस इन्वेस्टमेंट दैट इज प्रोडक्शन सेक्टर. क्योंकि एक्सपेंडिचर हम 2 चीज़ों के ऊपर करते हैं, कंजम्पशन के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर. ये 4 सेक्टर्स हैं, पर इन चारों सेक्टर्स को हम 2 सेक्टर्स में ही एलैबोरेट करके चलते हैं. वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में जाके पता चलेगा कि कैसे इनको 2 सेक्टर्स में ही कंपाइल किया जाता है. कंजम्पशन वी हैव ऑलरेडी लर्न, दैट इज ऑन द सिंगल यूज गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स and services. Consumption expenditure is made on these type of the 4 things. On the other hand, if we are talking about investment, our income is divided in 2 parts, that is consumption plus saving. अगर हम इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर दें तो हमारे पास रेस्ट ऑफ द पोर्शन विल बी सेविंग. सेविंग that is of 2 types, active and passive. Active savings are those which we have kept in the banks, क्योंकि वो वहाँ से फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए यूज़ हो जाएगा. एंड पैसिव सेविंग जो आप अपने घर पे रखते हो, विच आर नॉट गोइंग टू बैंक्स, ठीक है. बट इन एनी इकोनॉमी द इम्पॉर्टेंस इज ऑफ एक्टिव सेविंग्स बिकॉज दैट विल बी यूज्ड फॉर द फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस इन द ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट. क्योंकि ये पैसा जो है बैंक में जाएगा, बैंक उसको आगे प्रोड्यूसर्स को एज अ लोन प्रोवाइड कर देगा, तो लोन जो है वो प्रोडक्शन के लिए यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है. बट लोन कैन बी टेकन बाय हाउस होल्ड सेक्टर आल्सो, दैट इज नोन एज अ कंजम्पशन लोन. किसी ने कार खरीदनी है, किसी ने अपना मकान बनाना है, फॉर दैट पर्पज दैट इज नोन एज द कंजम्पशन लोन. बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट ओनली इन्वेस्टमेंट लोन्स विच विल बी यूज्ड फॉर द फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस. So investment, this saving will be used for the investment. So investment is that part of the income which is neither consumed nor saved but used for the further production process, which will increase in the GDP of the government economy, as well as which also helps in increasement of the level of the employment in an economy. क्योंकि यही पैसा जब प्रोडक्शन सेक्टर प्रोडक्शन के लिए यूज़ करेगा तो उससे क्या होगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ेगी. तो ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है आगे फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करेंगे. जब लोगों की इनकम इंक्रीज होएगी, अनएम्प्लॉयड सोर्सेज विल बी यूज फॉर द प्रोडक्शन पर्पज़, तो नेचुरली उनसे क्या होगा, उनकी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होएगा. लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने से लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज हो जाएगा. लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज होने से एग्रीगेट डिमांड ऑफ द इकोनॉमी विल इंक्रीज.
तो ये एक पूरा साइकिल है, ये एक पूरा सर्कल है विच विल हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी. Now again I'm coming on the topic investment. Investment, the money which is used for further production process, that can be investment on fixed assets or can be investment on the inventories. Fixed assets means to say आप लोगों की buildings, जब भी आप प्रोडक्शन करते हो, first of all you will make the building, then there will be need of machineries, equipments which are used as a fixed assets, क्योंकि ये capital assets है which will be used for the long time in the production process. ठीक है, that is known as a fixed investment. On the other hand, inventory investment is that amount which will be used for the inventories like raw material, semi finished goods and finished goods. ये तीनों का स्टॉक जो है इन्वेंट्रीज में आ जाता है. और प्रोडक्शन प्रोसेस में इन दोनों फिक्स्ड एज वेल एज इन्वेंट्री, दोनों तरह के जो एसेट्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एसेट्स, बिकॉज फिक्स एसेट्स के बिना कोई भी प्रोडक्शन का काम नहीं चल सकता. मशीनरीज और इक्विपमेंट्स के बिना प्रोडक्शन इज इम्पॉसिबल. एंड सेकंड, इन्वेंट्रीज जो है, रॉ मटेरियल स्टॉक शुड आल्सो बी देयर, बिकॉज एक प्रोड्यूसर जो है वो अपने पास हमेशा इन्वेंट्रीज का स्टॉक रखता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि सपोज कर लो किसी टाइम फ्यूचर में मार्केट में किसी क्राइसिस की वजह से रॉ मटेरियल वगैरह नहीं मिल पा रहा, तो एट दैट टाइम दिस इन्वेंट्री स्टॉक विल हेल्प हिम टू कंटिन्यू हिज प्रोडक्शन प्रोसेस. अदरवाइज देयर विल बी अ सीज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, और प्रोडक्शन प्रोसेस में एक बार अगर रुकावट आ जाए तो दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द प्रोडक्शन सेक्टर. Again, I am on the topic change in stock. Stock is the stock of fixed assets as well as inventory assets. The change in stock is equal to, here I am taking two more concepts, that is closing stock and opening stock. What is closing stock and what is opening stock? Closing stock is the stock which is at the end of an accounting year. Accounting year is from the 1st April to 31st March. जब बेटा कोई प्रोडक्शन प्रोसेस चलता है तो उसके अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए हम एक टाइम लिमिट ले लेते हैं, और वो टाइम लिमिट जो है वो 31st मार्च तक का होता है, 1 अप्रैल से 31st मार्च तक. अब जब मैंने 31st मार्च को अकाउंट्स को क्लोज किया है, तो मे बी एट दैट टाइम मेरे बिल्डिंग में बहुत सारे फिक्स एसेट्स पड़े हैं जो आगे लॉन्ग पीरियड यूज़ होते हैं, तो नेचुरली दैट आर माई क्लोजिंग स्टॉक. इस टाइम पे मेरा साल क्लोज हुआ, तो एट दीज एसेट्स आर माई क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स. बट जब नेक्स्ट ईयर का 31st मार्च को मैं स्टॉक क्लोज करूँगी, तो एट दैट टाइम जो ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक था विल बी ओपनिंग स्टॉक फॉर द नेक्स्ट ईयर. सपोज फिक्स्ड एसेट्स की बात करें तो मेरे पास लास्ट ईयर के 4 मशीनरीज थी मेरे पास, और इन दिस न्यू ईयर आई हैव परचेज 2 more machineries. These new stock of new machineries will be change in stock on in fixed assets. So closing के टाइम पे मेरे पास कितनी है, 6 machineries. ओपनिंग के टाइम पे थी मेरे पास 4 machineries. तो 2 machineries will be my change in stock of the fixed assets. Same if we are talking about change in stock of inventories, तो इसमें भी ऐसे ही आएगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. सपोज मेरी कोई फैक्ट्री है, मैं उस फैक्ट्री में 31st मार्च को जब काम क्लोज करूँगी, अकाउंट अपना क्लोज करूँगी, मेरे पास बहुत सा रॉ मटेरियल भी होएगा, सेमी फिनिश्ड गुड्स भी होंगी, और फिनिश्ड गुड्स जो मेरा बना पड़ा माल है जिसको मैंने नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टाइम में डिस्पैच करना है, सेल के लिए भेजना है. तो नेचुरली दीज आर माई इन्वेंट्री स्टॉक्स एट द एंड ऑफ द ईयर. नेक्स्ट ईयर जब मैं अपना सारे साल का काम करने के बाद एंड पे जाके अकाउंट मेंटेन करने की कोशिश करूँगी, तो एट दैट टाइम सबसे पहले मैं पिछले साल के स्टॉक को उसमें से माइनस करूँगी. दैट इज़ माई चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक जो इस टाइम का मेरा स्टॉक पड़ा है, माइनस ओपनिंग स्टॉक जो लास्ट ईयर 31st मार्च को मेरा स्टॉक पड़ा था. दोनों के डिफरेंस को मैं यहाँ पे लूँगी. दैट इज़ माई change in stock. So this is our topic
विच इज़ रिलेटेड टू अवर एक्सपेंडिचर्स। और यहाँ पे बेटे मैं आप लोगों को ये बात बता देना चाहती हूँ कि जब भी आपका पेपर आएगा तो उस पेपर में आपको बहुत से डिफरेंसेस आएंगे, जैसे डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर फाइनली कंज्यूम्ड बाय हाउस होल्ड सेक्टर, एंड इंटरमीडिएट गुड्स which are again going in the further production process. The value of final goods will be included, definitely included in the national income, क्योंकि जब हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं ना बेटे उस टाइम पे हमारे पास कुछ बातें आती है कि किस चीज़ को हमने नेशनल इनकम में काउंट करना है, किस चीज़ को नेशनल इनकम में काउंट नहीं करना। अगर हम फाइनल गुड्स की बात करें तो फाइनल गुड्स आर पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, बट इंटरमीडिएट गुड्स क्योंकि उसको अभी अगेन फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में जाना है, अगर हम उसको भी बीच में इंक्लूड कर देंगे देन देयर विल बी द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग मीन्स से एक ही चीज़ की वैल्यू हम 2 बार ऐड कर रहे हैं, पहले हम इंटरमीडिएट के फॉर्म में और अब हम उसको फाइनल गुड्स की फॉर्म में इंक्लूड कर रहे हैं। दैट विल बी द प्रॉब्लम ऑफ द डबल काउंटिंग। इससे नेशनल इनकम आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी जबकि नेशनल इनकम उतनी होएगी नहीं। तो इस तरीके से फाइनल गुड्स जो होती हैं हमारी जो मैंने पीछे टॉपिक करवाया उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, बट इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं। और ऐसे ही बेटा हमारे पास डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स में, जिसको हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस अस ऑल।